اس لائن میں آپ داخل ہو جائیں، فرسٹ لائن یا سیکنڈ لائن. کبھی کراؤڈ ہو تو لائن لگ جاتی ہے، ورنہ عموماً لائن کی حاجت. یہاں پہ آپ پاسپورٹ دیں ان کو. پاسپورٹ جب دیں گے تو جتنا پاسپورٹ ہوگا اسی پاسپورٹ کے حساب سے یہ پرچی آپ. اس مقام پہ ٹرالی فری والی آپ کو مل جاتی ہے. یہ دیکھیں، ٹکٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو کس لائن میں لگنا ہے، بورڈنگ آپ کی کہاں سے بنتی ہے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ ایزی ان کاموں کو کر سکتے ہیں. اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں تو یہاں سے لوگوں سے پوچھ کر بھی آپ بہت سارا کام ایزی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ایک معلوماتی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ مدینہ پاک آنے والے بیچارے کافی حاجی پریشان ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پر کہاں زمزم کا پانی ملتا ہے اور کیسے ہم اس پانی کو حاصل کریں گے، وہ مقام کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور آج مدینہ طیبہ کا وہ پیارا سا خوبصورت سا ایئرپورٹ بھی دکھائیں گے. اور اس ایئرپورٹ کے باہر جو ایک خوبصورت سی مسجد ہے، ہم اس مسجد کا بھی وزٹ کرائیں گے. سب سے پہلے ہم مسجد دکھاتے ہیں، پھر زمزم کے مقام پہ جائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ خوبصورت سی مسجد ہے ایئرپورٹ کی، اور یہاں پر یہ خوبصورت سا جھرنا لگا ہوا ہے، اور اس طرح بھی خوبصورت سا ایک مینار ہے. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ. مسجد انتہائی خوبصورت بنانے والوں نے بنایا ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا باب الرئیسی ہے. یہاں سے ہماری انٹری ہوتی ہے باب الرئیسی سے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نورانی منظر ہے. دیکھیں کیا بات ہے. جھومر کے ہر راؤنڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اور ممبر جو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت ہے. ممبر بھی، ممبر کے آخری حصے پر اللہ عز و جل کا اسم مبارک. یہ دیکھیں اس طرف پیارے پیارے اللہ عز و جل کا سب سے خوبصورت نام. ہر نام اللہ کا خوبصورت ہے، لیکن تمام ناموں میں اس نام میں ہیبت بھی زیادہ ہے اور محبت کرنے والے مسلمان. چلے کبھی ایسا موقع ملے آپ کو کہ آپ ایئرپورٹ آئے ہیں اور فلائٹ میں ٹائم ہو اور نماز کا ٹائم مل جائے کوئی بھی، تو ضرور اس مسجد میں نماز پڑھیں. اور اسی بہانے سے چلو مسجد کی آپ زیارت بھی کر لیں گے. اب ہم آپ کو اس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں سے حاجیوں نے زمزم حاصل کرنا ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے مدینہ ایئرپورٹ پہ زمزم لینا بہت ایزی ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں تو ان کی گھبراہٹ بھی کم ہو جائے گی. ایک بار یہ ویڈیو دیکھیں اور مکمل بھی دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد شیئر کریں تاکہ مکہ مدینے آنے والے جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے آپ ایک بہترین یقیناً مددگار ثابت ہوں گے، اور ان کے لیے یہ ویڈیو کافی مفید بخش ہوگی انشاءاللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے. یہ مدینے کا ایئرپورٹ ہے. شہر مصطفیٰ یہ دیکھیں، یہ ایئرپورٹ ہے مدینے کا، اور آپ کو دکھاتے ہیں جو گاڑیاں آتی ہیں نا، وہ گاڑیاں آپ کو کہاں اتارتی ہے. اس کے باہر ایک خوبصورت سا کافی شاپ بھی ہے. اگر آپ مدینے سے نکل رہے تھے اور کافی پینے کی طبیعت تھی اور نہ لے سکے تو گھبرائیں نا، ایئرپورٹ پر بھی کافی شاپ ہے. اس کے باہر آپ ایزی بیٹھ کے یہاں پر کافی وغیرہ پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں. یہ دیکھیں، وہ بس وہاں سے انٹر ہوئی ہے اور بس وہیں سے داخل ہو گئی ہے. وہ دیکھیں بس کا داخلہ وہاں سے ہو گیا ہے، لیکن آپ پرائیویٹ ٹیکسی سے جب انٹر ہوں گے ایئرپورٹ کی طرف، جس طرح یہ گاڑی ایک آ رہی ہے، دیکھیں آپ، یہ گاڑی آگے کہاں رکے گی. یہ دیکھیں، یہ گاڑی آ کے یہاں پہ رکتی ہے اس مقام پہ جہاں پہ یہ دو گاڑی کھڑی ہے. اور یوں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایئرپورٹ کی طرف آپ بڑھتے ہیں نا،
तो ये एयरपोर्ट का सीरा है, ये कॉर्नर है। एयरपोर्ट का जो कॉर्नर है आपके सीधे हाथ की तरफ आएगा और वहाँ से 1 2 3 तीसरे खम्बे के पास गाड़ी रोकी जाती है। तीसरे खम्बे के पास देखें, ये जहाँ एरो का निशान नज़र आ रहा है, गाड़ी या तो आप यहाँ खड़ी होगी या तो वहाँ तो बल्कि गाड़ी खड़ी होने की जगह ये है और यहाँ अब गाड़ी खड़ी कर दें और सामान ट्रॉली पे लाद लें। वो देखिए ये ट्रॉली वाला खड़ा है, ये 10 रियाल ये लेते हैं लेबर और आपको अंदर तक छोड़ कर ये आएंगे। अगर इनको 10 रियाल नहीं देना है, 10 रियाल बचाना है, तो ये गेट नंबर 1 के बाजू में जाएंगे तो ट्रॉली वहाँ पर खड़ी है, वहाँ से ट्रॉली लें और यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी होगी, सामान लोड करें, अपने हाथ से लेके जाएं। लेकिन आपको चूँकि जमजम लेना है तो यहाँ से आप ट्रॉली पे रखें और लेकर इस तरफ आ जाएं। है शहरे मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है मेरे प्यारे। यहाँ पे लिखा हुआ जमजम, माँ जमजम, यानी जमजम आपको यहाँ से मिल जाए। आका की शान ही दाखिल हो जाए, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन, कभी क्राउड हो तो लाइन लग जाती है वरना उमूमन लाइन की हाजत नहीं आती है, लाइन की हाजत नहीं पड़ती। इस तरफ बहुत सारे प्लेन भी खड़े हुए देखें, ये देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला बूथ खुला है। यहाँ पे आप पासपोर्ट दें इनको, पासपोर्ट जब देंगे तो जितना पासपोर्ट होगा उसी पासपोर्ट के हिसाब से ये पर्ची आपको बना के दे देंगे। पहले 9 रियाल में पानी था, अब गालिबन 12.5 रियाल कर दिया इन्होंने। वहाँ से पर्ची लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, पर्ची लेने की जगह है 1 2 3 4 5 मकाम बनाए हुए हैं। यहाँ पर इस मकाम पर आके आप पर्ची देंगे, सलाम अलैकुम के फ़िलहाल यहाँ पे भाई को पर्ची देंगे तो जितनी पर्ची होगी उस हिसाब से ये जमजम आपके हवाले कर देंगे। जिस तरह देखिए जमजम इन्होंने रखा हुआ, यहाँ जमजम का पूरा स्टॉक है। बद है और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, उनके रब ने कब। समझ लें, सबसे पहले आप इस कॉर्नर पे उतरे, यहाँ पर वहाँ से चल कर आए, आपने यहाँ से पानी लिया और पानी लेने के बाद आपको सीधा इस तरफ जाना है। इन खम्बों के हवाले से मैंने बताया था, आपके सीधे हाथ पे एक खम्बा, दूसरा खम्बा और तीसरा पिलर वो है, उसी के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अरे धूप ठंडी ठंडी है और छाँव महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है, छाँव महकी महकी है, शहर मुस्तफ़ा तेरी बात ही। ये देखिए ये भाई ने अपना सामान लिया, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी वाले उतारते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, और ट्रॉली आपको फ्री वाली लेनी हो तो इस मकाम पर ट्रॉली फ्री वाली आपको मिल जाती है। ये देखिए, ये पैसा नहीं पे करना है, यहाँ से यूँ दबाएं, इसको निकालें और लेके चले जाएं। अगर 10 रियाल वाला लेना है तो वहाँ पर लेबर हैं, आपका सामान खुद वो रखेंगे और आपको अंदर तक लेके जाएंगे। ये अपना आप फ़्लाइट नंबर चेक कर लें कि आपका फ़्लाइट नंबर क्या है। फ़्लाइट नंबर LCT पे देखें, ठीक है। अब ये बना हुआ है FE, आप अपना टिकट नंबर चेक करें और टिकट नंबर जब आप चेक कर लेंगे यहाँ पर तो ये बता देगा कि आपकी बोर्डिंग कितने नंबर पे है। तो यहाँ पर ये सीरियल देख लें, ये E2 E4 इसी तरह
कोई और सीरियल होगा तो B2, B4, B3 इस तरह। ये सारे आशिकाने रसूल यहाँ पे। टिकट चेक करने के बाद आपको किस लाइन में लगना है, बोर्डिंग आपकी कहाँ से बनती है, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप इजी इन कामों को कर सकते हैं। अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो यहाँ से लोगों से पूछ कर भी आप बहुत सारा काम इजी कर सकते हैं। चंद एहतियातें भी आपको बरतनी है कि बहुत सारे लोग जो पहली मर्तबा सफ़र करते हैं उनको इन बातों का इल्म नहीं होता। जो ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं, एक से ज़ायद मर्तबा, तो उनको तजर्बा हो जाता है। जिसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र है तो वो कई गलतियां कर बैठते हैं। मसलन वो सामान वगैरह हैंड कैरी हाथ में है, बाकी सामान लगेज कर दिया और एयरपोर्ट पे घूमते घूमते इस तरह की परफ्यूम दुकान पर आ गए और किसी खुशबू पे बेचारे ने दिल खो दिया और यहाँ से परचेज़ कर लिया। नहीं जी, हमने तो ये खुशबू लेनी है, ये अच्छी, बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी भी अच्छी है, आप ले भी सकते हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन याद रखिएगा ये हैंड कैरी आगे जब आपकी चेकिंग में ये डालेंगे ना मशीन में, तो मशीन से खुदा न खास्ता बच भी गए और हैंड कैरी जब वो खोलेंगे तो ये चीज़ें जाने नहीं देंगे, लिक्विड, याद रखिएगा। इस तरह की चीज़ें आप एयरपोर्ट से परचेज़ करके आंखों पे लगा के जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ये सब ले सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड वाला सामान आप लेने से बचें। हाँ, ये अलग बात है कि कोई सामान लेना था किसी के लिए गिफ्ट देने के लिए, खाने पीने वाली अशियाँ, तो बेशक वो हैंड कैरी में आप यहाँ से वो लेके डाल सकते हैं। ये चीज़ें इजी जा सकती है आपके हैंड कैरी में, ये मना नहीं करेंगे। बल्कि आपका लैपटॉप का बैग है या इस तरह ख़वातीन आपके साथ हैं तो ख़वातीन के पास जो छोटे छोटे पर्स होते हैं उन पर्सों में भी इस तरह का सामान आप डाल के इजी लेके जा सकते हैं, वो मना नहीं करते बाहर कैसे। है हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली। ये हम एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं दोबारा। इसी मस्जिद से हमने अपनी व्लॉगिंग शुरू किया था और मगरिब के नमाज का वक्त हो चुका है, तो हम नमाज मगरिब अदा करेंगे और नमाज मगरिब अदा करने के बाद पार्किंग से गाड़ी उठाएंगे और फिर आगे का सफ़र करेंगे।